خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے بات کریں سندھ حکومت کا پولیس شہدا کی بیوی بیوہ کو زندگی بھر تنخواہ دینے کا اعلان۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کورنگی پولیس کی کارکردگی سے بھی خوش۔ آئی جی سے بات کر کے پولیس ٹیم کے لیے انعام کا وعدہ کیا۔ موٹر وہیکل ترمیمی بل بھی پیش کیا۔ ایوان نے بل کی مرحلہ وار منظوری دے کر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے شہداء کو۔ ان شہیدوں کی وجہ سے یہاں پر سندھ میں امن و امان ہو رہا ہے۔ ہمیشہ میں نے کریج دیکھی ہے ان کے بیواؤں میں، ان شہداء کے جو والدین ہیں، والد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعم البدل نہیں ہے زندگی کا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان شہداء کے لیے لائف ٹائم ان کی بیوہ کو وہی تنخواہ ملے۔ ہم نے پالیسی بنائی، جیسے ہی اس شہید کو مراحت مل رہی تھی وہ سمجھے زندہ کی حیثیت سے، وہی اس کی بیوہ کو مل رہا ہوتا ہے، اس کی بیٹا ہوتا ہے۔ سیکیورٹی فیچر والی نمبر پلیٹ لگانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت نمبر پلیٹ اپڈیٹ کرنے کی مہم تیز کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی بریفنگ۔ 7 ارب روپے کی ریکارڈ مالیت کی منشیات ضبط کرنے کا بھی بتایا۔ کہا جدید نمبر پلیٹوں سے سیکیورٹی صورتحال بہتر، جرائم میں کمی ہوگی۔ مکیش کمار چاولہ نے بلاول بھٹو کو بریفنگ میں کہا کہ سندھ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے 7 ارب روپے کی ریکارڈ مالیت کی منشیات کو ضبط کیا۔ سندھ میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت گاڑیوں کی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ نمبر پلیٹ اپڈیٹ کرنے کی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فیچر والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کے بعد صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال مزید بہتر ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں کراچی کی اہم شاہراہوں کی لائٹ سولر سسٹم پر منتقل ہوں گی۔ ترجمان بلدیہ عظمہ کراچی دانیال علی شان کہتے ہیں سولر اسٹریٹ لائٹس کی چین سے خریداری ہو گئی ہے۔ شارع فیصل، میرین ڈرائیو، شاہراہ ایران کی اسٹریٹ لائٹس کو مکمل طور پر سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ اہم ترین منصوبے کو 30 ستمبر تک مکمل کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا یہ جانتے ہیں۔ جی شعیب، تھینک یو سو مچ۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ بلدیہ عظمہ کراچی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کی ہدایتوں پہ شہر کی میجر اسٹریٹ کو سولر کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو اپنا گرین انوائرمنٹ کی طرف ہوگا، اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوگا یہ اپنا الیکٹریسٹی کی بچت میں ہوگا۔ فی الحال 3 اسٹریٹ ہیں وہ جو ہونے والی ہیں۔ ایک ہے اپنا شارع فیصل ہے، میرین ڈرائیو ہے، اور شاہراہ ایران ہے۔ تو ان کی پروکیورمنٹ پروسیس مکمل ہو چکا ہے، اور ہوپ فلی ان کی ساری انسٹالیشن جو ہے وہ 30 ستمبر سے پہلے تک ہو جائیں گی۔ کراچی کی دیگر شاہراہوں کو بھی جی بالکل، پہلے ہم نے ان 3 کو کیا ہے، تو مین ویل ہم ان کو گریجولی اس کو اپنا بڑھاتے جائیں۔ خاتون نے تالا نکل لیا، لیاری جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز نے بچا لیا۔ بغیر آپریشن کے مریضہ کے پیٹ سے تالا نکال لیا۔ خاتون کی سرجری کے بغیر لیپروسکوپی کے ذریعے تالا نکالا گیا۔ آپ کو بتائیں خاتون نے تالا نگل لیا، لیاری جنرل اسپتال کے ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ بغیر آپریشن کیے مریضہ کے پیٹ سے تالا نکال لیا۔ خاتون کی سرجری کیے بغیر لیپروسکوپی کے ذریعے تالا نکالا گیا۔ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن، تفتیشی اہلکار بھی معطل ہونے لگے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا 7 افسران کو معطل کرنے کا حکم۔ انسپکٹر دلبر خان، انسپکٹر منظر حسین اور انسپکٹر ممتاز کو معطل کیا گیا۔ انسپکٹر ظفر، سب انسپکٹر اکرم، سب انسپکٹر نسیم اور اے ایس آئی عبدالقدوس بھی شامل۔ کراچی میں پولیس کی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن جاری ہے۔ آپریشن پولیس کے بعد انویسٹیگیشن پولیس کے افسران کی باری آ گئی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ نے شعبہ تفتیش کے 7 پولیس افسران کو معطل کر دیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون آفس کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن سٹی 21 کو موصول۔ ڈی آئی جی کی جانب سے انسپکٹر دلبر خان، انسپکٹر منظر حسین اور انسپکٹر ممتاز کو معطل کیا گیا۔ انسپکٹر ظفر، سب انسپکٹر اکرم، سب انسپکٹر نسیم اور اے ایس آئی عبدالقدوس شامل۔ تمام افسران کو غفلت برتنے اور لاپرواہی پر معطل کیا گیا۔ تمام افسران انویسٹیگیشن ایسٹ 1، 2 اور 3 میں تعینات تھے۔ معطل افسران کو ایسٹ زون ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ دھابیجی سب اسٹیشن اور گریڈ اسٹیشن پر مرمتی کام مکمل۔ شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا رہا۔ لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل بن قاسم کے علاقے متاثر ہوئے۔ ڈی ایچ اے اور نارتھ ناظم آباد میں بھی پانی کی کمی رہی۔ آپ کو بتائیں دھابیجی سب اسٹیشن اور گریڈ اسٹیشن پر مرمتی کام مکمل۔ شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا رہا۔ لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل بن قاسم کے علاقے متاثر ہوئے۔ ڈی ایچ اے اور نارتھ ناظم آباد میں بھی پانی کی کمی رہی۔ آپ کو بتائیں شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا رہا۔
दहाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना रहा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल बिन कासिम के इलाके मुतासर हुए। DHA और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी पानी की कमी का सामना रहा। ताहम अब ये पानी की कमी को पूरा कर दिया गया है। दहाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम को मुकम्मल कर लिया गया है। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना रहा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल बिन कासिम के इलाके मुतासर हुए। DHA और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी पानी की कमी रही। आपको बताएं, दहाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना रहा। दहाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल हो गया। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना रहा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल बिन कासिम के इलाके मुतासर हुए। DHA और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी पानी की कमी रही। शहर कायद में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। कोरंगी 2.5 नंबर सेक्टर E33 के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत। कोरंगी 2.5 नंबर स्कीम E33 के मकीन सालों से पानी की फराहमी से महरूम। पानी की अदम दस्याबी पर शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। घरों के अलावा मस्जिद में भी पानी नहीं। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है कि 14,000 का टैंकर खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। लाइन में खारा पानी, साफ पानी के लिए तरस गए। 4 से 5 साल हो गए मुसलसल पानी इलाके में नहीं आ रहा। बीच में कुछ अरसे के लिए आया था, फिर बंद हो गया पानी। 14,000 रुपये का हम पानी का एक टैंकर डलवाते हैं, जो कि 6 दिन सिर्फ चलता है। 6 दिन भी बड़ा मुश्किल। अगर जुमा बीच में आ जाए तो फिर 5 दिन में, 5.5 दिन में वो पानी का टैंकर ख़त्म होता है। मस्जिद बहुत बड़ी है, नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़ेरे ज़मीन पानी इस काबिल नहीं है कि उससे वज़ू किया जा सके। बहुत ज़्यादा खारा पानी है, इस्तेमाल के काबिल पानी नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं कि गरीब आवाम इस महंगाई के दौर में घर का राशन डालें या महंगा पानी का टैंकर खरीदें। बस सर गुजर बसर ऐसे ही हो रहा है। महंगाई का दौर है, या खा लें या पानी डलवा लें। एक हफ्ते जो है ना पानी के पैसे दे देते हैं, तो एक हफ्ते राशन के दे देते हैं। 3 टाइम का खाना है तो 1 टाइम पानी के उसमें निकालने पड़ते हैं मद में ये पैसे। गुज़श्ता कई सालों से पानी नहीं आ रहा है। लाइनें हैं लेकिन पानी नहीं आता है। पूरी आवाम, पूरे इलाका में तमाम परेशान है पानी की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी लाइनों में नहीं आ रहा है। पानी जैसी बुनियादी सहूलत के लिए आवाम दरबदर हुकूमत और वाटर बोर्ड से फौरी इकदाम का मुतालबा कर रही है। पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची वालों को गैस और बिजली के मसाइल से छुटकारा न मिल सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश समेत बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत बरकरार हैं। मवाजकोट, लांढी, जहांगीराबाद, औरंगी और कोरंगी समेत बेशतर इलाके मुतासिर हैं। शहरी कहते हैं कि रात से सुबह तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है। दिन में भी अचानक गैस गायब हो जाती है, जबकि बिजली की बंदिश के बायस मामूलात मफलूज होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है और बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। टाउन कमेटी सेठारजा में मुबैना तौर पर 23 करोड़ 25 लाख रुपए की करप्शन स्कैंडल की तहकीकात डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन इम्तियाज अली अबड़ो ने रुकवा दी। तहकीकात का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिद हुसैन मीरानी से वापस लेकर उबैदुर रहमान अब्बासी के सुपुर्द कर दिया गया। हुक्मनामा असिस्टेंट डायरेक्टर क्राइम ने जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वाइस चेयरमैन मोहम्मद सादिक ने तहकीकाती अफसर तब्दील करने की मुखालफत करके अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। मोहम्मद सादिक ने कहा कि तहकीकाती अफसर जाहिद हुसैन मीरानी बेहतरीन तहकीकात कर रहे थे। उनके केस को खराब करने के लिए तहकीकाती अफसर तब्दील किया गया। इस अमल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने का मिशन मेयर कराची ने कमर कस ली। आई चंद्रीगढ़ रोड में ग्रीन एरिया का तामीराती काम शुरू हो गया। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से आई चंद्रीगढ़ रोड पर माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा रहे हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड के फुटपाथों को भी दुरुस्त किया गया है। आई चंद्रीगढ़ रोड शहर का मुआशी हब भी तस्वुर की जाती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर में शजरकारी को फरोग देने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। बल्दिया उस्मा कराची की ज़ेरे इंतज़ाम अहम शाहराहों पर भी शजरकारी की जा रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलियात बढ़ाने का मिशन नए ब्लॉक का काम 15 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची ने अस्पताल में जारी कामों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल में इलाज की सहूलियात बढ़ाने के लिए नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। नए ब्लॉक का काम 15 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अब्बासी शहीद अस्पताल की बुनियाद रखी थी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अब्बासी शहीद अस्पताल को सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा के ज़ेर एहतमाम अब्बासी शहीद अस्पताल में नए ब्लॉक का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में जारी कामों की वीडियो ट्वीट कर दी। सिंध हुकूमत की जानिब से 1 से 22 ग्रेड तक के खुसूसी अफराद, मुलाजमीन और अफसरान के स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में 17 बरस के बाद इजाफा। 2000 रुपए के इजाफे से मुआवजा 4 से बढ़कर 6000 रुपए हो गया। महकमे खजाना सिंध ने स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में 2000 रुपए इजाफे का ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 1 से 22 ग्रेड के खुसूसी अफराद, मुलाजमीन और अफसरान के स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 17 बरस के बाद 4000 से बढ़कर 6000 रुपए मुकर्रर कर दिए गए। सिंध असम्बली में शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान में खिताब करते हुए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सिंध पुलिस पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और तरबियत याफ्ता पुलिस है। असम्बली में पेश मोटर व्हीकल तरमीमी बिल मंजूरी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर असेंबली सैयद उवैस कादिर शाह की सरबराही में शुरू हुआ। सिंध असेंबली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस के बाद पीपल्स पार्टी के रुकन फारूक अवान ने पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद पेश की गई, जिस पर बहस में हिस्सा लेने वाले सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पुलिस को तनकीद का निशाना बनाना तो आसान है, लेकिन पुलिस के जवान अपनी जान हथेली पर रख कर दिन रात हमारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। सिंध पुलिस ने न सिर्फ दहशतगर्दी का मुतालबा किया बल्कि खतरनाक नौयत के केसेस भी हल किए। लेकिन कोई सोच ये नहीं रहा होता कि वो पुलिस का जवान जो चंद हजार की तनख्वाह के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर आपकी हिफाजत के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, चाहे शहरी इलाके हों या देहाती इलाके हों। उनके दिलों पे क्या गुजरती जब हम पुलिस पे बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं। सर, सिंध में खुसूसी तौर पर जो पुलिस का किरदार रहा है, स्पेशली पिछले मैं समझता हूँ कि 25-30 सालों में, वो एक मिसाली किरदार है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि हो सकता है कि हम जैसे सियासतदान पुलिस को गलत काम के अहकामात देते हों, गलत अमल के जिम्मेदार अहकामात देने वाले होते हैं। अपने शोहदा को इज्जत देनी होगी। सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने पुलिस के शोहदा को सलाम पेश करते हुए कहा कि सिंध में अमन अमान पुलिस की वजह से कायम है। कोई पैकेज शोहदा का नेमल बदल नहीं हो सकता। ऐवान पुलिस शोहदा को सलाम पेश करता है। कभी ये होता है कि हमेशा रिवायत यही रही है कि अफसरान के ख़िलाफ़ ही बोला जा रहा होता है कि इन्होंने काम नहीं किया, नालायक हैं, ये हैं। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि अगर कोई अफसर अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करेंगे तो दूसरे अफसर भी उसको फॉलो करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने भी शोहदा के पुलिस को खराज अकीदत पेश करते हुए करारदाद की हिमायत की। उन्होंने मुतालबा किया कि अवामी नुमाइंदे पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। करारदाद की मुतफ़क़ा मंजूरी के बाद स्पीकर उवैस कादिर शाह ने सिंध असेंबली का इजलास मंगल को 1:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अक्सर शाहिद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में अहम केसेस की समाअत। अदालत ने अहम केसेस पर बड़े अहकामात जारी कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। इस शहर में बड़ी अदालत और जारी किए गए बड़े अहकामात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। नान नफका की अदायगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ शहरियों की अपीलों पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हकाइक की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं बल्कि ये फैमिली कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। अदालत ने लिहाजा नॉन नफका से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दिहाड़ीदार मुलाजमीन की मुस्तकली से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तकर्री के फैसले पर एतराज था तो वक्त पर चैलेंज करना चाहिए था। अदालत ने अपील निपटा दी। डिफेंस फेज 5 की एक लड़की के मजहब की तब्दीली और पसंद की शादी के मामले पर अदालत ने लड़की को 7 अगस्त को सख्त सिक्योरिटी में पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अगर शादी जबरी साबित हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से महकमों में फोकल पर्सन की तकर्री और मोबाइल डिवाइस के इस्तेमाल से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में तरमीम कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21।
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا. فی تولہ سونا 500 روپے اور فی اونس $5 مہنگا ہو گیا. آل پاکستان صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $5 اضافے سے $3,368 تک پہنچ گئی. پاکستان میں 24 قیرات فی تولہ سونا 500 روپے مہنگا ہو کر 3,59,500 روپے اور 10 گرام 429 روپے سے بڑھ کر 3,08,213 روپے ہو گیا. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں فی تولہ چاندی 3,953 روپے پر رہی.